रिकॉर्डिंग कर लो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मित्ਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਣੀ ਖਾਤਰ ਲਹੂ ਦਿਲੇ ਦਾ ਛਾਣੀ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਣੀ ਖਾਤਰ ਲਹੂ ਦਿਲੇ ਦਾ ਛਾਣੀ ਦਾ। ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਬਹਿਰੇ ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ। ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਣ ਨਤਾਣੀ ਦਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਣੀ ਖਾਤਰ ਲਹੂ ਦਿਲੇ ਦਾ ਛਾਣੀ ਦਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮਾਣੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਪਿਲਾਗ ਲੋਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਔਰ ਤਨਕੀਦ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਲਾਗ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਟਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਟਾਈ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਸੱਚਲ ਸਰਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੰਧੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੱਚਲ ਸਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਪਿਲਾਗ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰੁਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਲ ਸਰਮਸ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਯਾਜ਼ ਗੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ आए हो, चक्कर लाया, और कितने दिन तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, और मेरा बेटा यहाँ रहता है, वो पढ़ता है, बड़ा यहीं से पढ़ा है, और आजकल वो यहीं काम कर रहा है, तो उसकी वजह से आना जाना रहता है। अच्छा अच्छा। फिर जब यहाँ आता हूँ तो सोचता हूँ कि ऐसे मसरूफ़ रहना चाहिए, और घर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे बेहतर है कि सही है तारीख़ी मकामात हैं, दरगाहें हैं, हमारे जो क्लासिकल पोइट्स हैं उनसे उनके मज़ारों पे, उनके दरगाहों पे जाना चाहिए, उनके बारे में मालूमात लेनी चाहिए। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है जी। बड़ा
ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਸੇ ਮਿਲ ਕਰ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸਿੰਧੀ 'ਚ। ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ पक्ष हो, ज़्यादा मौजूद कादे ते तहकीक की थी तुसी? मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत जो होते हैं, जैसे उन पर लिखा है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो सारे अदबी मौज़ूआत होते हैं। उसमें अमन आश्ती की बातें होती हैं, जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़बानों के बीच में जो रवाबित हैं जी जी। उनके हवाले से मकालात हैं। गज़ल के हवाले, सिंधी गज़ल के हवाले से मैंने लिखा है, वो तहकीक मकाले हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स हैं उन पर लिखना होता रहता है। जी बिल्कुल। तुसी शायरी ज़्यादा गज़ल लिख रहे हो या नज़म लिखते हो? नहीं, मैं गज़ल लिखता हूँ। गज़ल जी, गज़ल मेरी पहचान है और शुरू से मैंने उसी से मेरी रग़बत रही है ना, ज़्यादा मैं गज़ल ही लिखता हूँ। यानी आपने ज़्यादा गज़ल लिखी ज़्यादा है, गज़ल लिखी। गज़ल की ही आपका सारा रुझान है। तो नज़म की तरफ रुझान नहीं हुआ आपका? नहीं, मैंने लिखी तो है, नज़में काफ़ी लिखी हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादा जो मुझे अभी आसानी लगती है जो इज़हार के लिए, वो गज़ल में लगती है। तो शुरू से तो इसकी क्या वजह है कि आपको जो सिंध की भी जो एक शायरी की जो रीत है उसमें काफ़ी हमने सिंधी में सुननी है, और नज़म का जो वो भी एक नज़म की सिंफ में आ जाती है। जी। तो नज़म जो हमारी शायरी में शुरू से चली आ रही है, तो आप गज़ल की तरफ आपका मिलान? मैंने तकरीबन तमाम जितने भी मुरोजा जो असनाफ़ हैं शायरी की, उन सब में लिखा है। जैसे गज़ल है, नज़म है, दोहे हैं, और सिंधी में हमारी अपनी जो क्लासिकल सिनफ़ें हैं, बेत और वाई, वो लिखी हैं। काफ़ी की सिंफ में भी एक दो जो शेर मैंने लिखे हैं। फिर जो बाहर से आई हुई असनाफ़ हैं शायरी की, जैसे हाइको है, जापान से आया है, तराइल है जो फ्रेंच जो पोइट्री से हमारे यहाँ आया है, वो लिखा है मैंने। और इस तरह से तकरीबन सब में लिखा है। लेकिन मुझे लगता है यूँ है कि ये जो गज़ल की सिनफ है उसमें मैं अपने ख़यालात को बेहतर तरीके से उसमें इज़हार कर पाता हूँ। तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा वक्त दिया है। शुरू से ही मेरा उससे लगाव रहा है, गज़ल इस सिनफ से। जी ठीक है। तो क्लासिक्स में आपने वहाँ पे ज़ाहिर है सच्चल सरमस्त साहब पढ़ा है और अब्दुल लतीफ़ भटाई हमारे जो कदीम जो क्लासिकल शायर हैं वो उनसे भी पहले के हैं। काजी काज़न से ये सिलसिला शुरू होता है। अच्छा जी। काजी काज़न हमारे पहले बड़े क्लासिकल शायर जिनको माना जाता है। इनका कौन सा दौर बनता है? ये है समा दौर है, फिर अरगून दौर में भी हो रहा है। तो ये दोनों तकरीबन ये यूँ समझ लें आपको 700-800 साल पुरानी बात है। अच्छा। और एक निस्बत उनकी मैं और आपको बताऊं, क्योंकि आज आप उसको ज़्यादा समझ सकते हैं या पंजाब के लोग, कि यहाँ लाहौर में जो हज़रत मियाँ मीर हैं, जी जी जी, वो उनके नाना थे। अच्छा। काजी काज़न जो हैं, अच्छा, उनके नाना थे। ठीक है। ये उनकी बेटी के बेटे हैं। और काजी काज़न के बाद शाह करीम हैं, जो परदादा थे शाह लतीफ़ के। ठीक है। उनका ज़िक्र आता है। शाह लुत्फ़ुल्लाह कादरी हैं, मियों शाह इनायत रिज़वी हैं। ठीक है। उनके बाद भटाई साहब आते हैं। ठीक है। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहा है। फिर भटाई साहब हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, फिर सच्चर सरमस्त हैं, फिर भाई चैन राय सामी हैं। अच्छा। तो ये क्लासिकल जो एक लड़ी है वो जो शुरू से चलती है, सूफी शोरा की वो चलती आ रही। जी जी। उसके बाद पंजाब पाकिस्तान के जितने भी बड़े सूफिया हैं किसी भी ज़बान में, क्योंकि ज़्यादातर जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं या सिंधी में या पंजाबी में। पंजाबी में आते हैं तो फिर सुल्तान बाहू हैं, शाह हुसैन हैं, और बाबा फरीद हैं, वारिस शाह हैं, फिर गुलाम फरीद हैं। तो ये सारे जितने बड़े शुरा हैं, तो ये सब पढ़ने को मिलते हैं। वहाँ चले जाएं तो रहमान बाबा मिलते हैं, बलूचिस्तान चले जाएं तो मस्तवकड़ी मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला बनता रहता है।
بڑا اچھا لگا جی آپ سے اس حوالے سے بات کرنا. اور آپ کتنے سال پڑھایا آپ نے ادھر میں نے خیر جی پور میں؟ تو آپ جی کا میں پہلے سے رہائش خیر پور میں ہے؟ نہیں، میری رہائش تو ہے وہ سکھر میں پیدا سکر بھی میں. وہیں سکھر میں ہوں. اچھا اور بڑا میں نے تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی. اچھا جی. اور پہلے میں کالج میں تھا ٹھیک ہے. لیکچرر. فرسٹ ٹائم میں وہاں کی جو کالج میں کمیشن آئے ہوتا ہے، جو کالج پبلک سے سروس یونیورسٹی کمیشن، جی وہی 7.5 سال میں نے کالج مختلف شہروں میں مختلف کالجوں میں پڑھایا؟ پڑھایا. اس کے بعد جب سندھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شاہ لطیف یونیورسٹی میں جی بنا جی جی. تو میں فرسٹ لیکچرر کے طور پہ وہاں پہ ہوں. چلا گیا. ٹھیک ہے. اور تقریباً 30 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا ہاں اور ماشاء اللہ. 7.5 سال میں نے کالج میں پڑھایا. بڑی بات جی ہے، جی بڑی بات ہے. بہت سرو کیا آپ نے، اور اپنی زبان کے لیے، اپنی بولی کے لیے آپ نے بڑا کام کیا. جی تو شاعری میں آپ سے بات کرتے ہیں جی. کہ غزل جو ہے آپ اس وقت وہاں پہ شاعری میں غزل لکھی جا رہی ہے سندھی میں زیادہ یا نظم لکھی جا رہی ہے؟ دونوں لکھی جا رہی ہیں. ہمارے بہت سے نوجوان جو شاعر ہیں ہوں. وہ غزل بھی لکھ رہے ہیں اور نظم بھی لکھ رہے ہیں، اور دونوں میں بڑا اچھا لکھ رہے ہیں. اچھا. ہاں، ان کی جو تو آپ ذاتی طور پہ کس غزل گو سے متاثر ہیں، یا غزل آپ کو کو شاعروں سے. شاعروں سے؟ آپ سے سینئر بھی لکھتے جی ہوں گے؟ جی بالکل. ہمارے یہاں پہ ہمارے بڑے شاعر جو سندھی کے مانے جاتے ہیں موجودہ دور میں، ہوں ہوں. شیخ ایاز، اچھا. انہوں نے غزل کو ایک نیا انداز اور نیا ایک رنگ دیا تھا. جی جی. تو انہوں نے بھی غزل لکھی. ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد تنویر عباسی صاحب ہیں، اچھا. شمشیر الحیدری صاحب ہیں، ہاں ہاں. وفا ناتھن شاہی صاحب ہیں جنہوں نے ماڈرن غزل لکھا اور بڑا اچھا غزل انہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیشرو شاعر ہیں ہمارے، جو ہوں. ان سے ہم نے تو سیکھا. اور کتنی بکس آپ کی شاعری میں چھپ چکی ہیں؟ میری 10 شاعری کی کتابیں ہیں. کتابیں ہیں. ان میں پہلی 4 بچوں کے لیے ہیں. اچھا، بچوں کا ادب بھی لکھا ہے جی آپ جی نے؟ بچوں کی میں نے 4 کتابیں میری کہ نام بھی بتا دینا ہمارے جو مختلف ہیں. دیکھنے والے ہیں وہ جان جائیں. گل ایں تارا، اچھا. خلکڑ ہار، اچھا. اساں جو راندیوں، واہ. اور اساں جو اسکول. اساں جو اسکول. جی. اس کا مطلب بھی بتاتے جائیں نا ساتھ ساتھ. اساں جو اسکول ہمارا اسکول. ہمارا اسکول. جی. اور خلکڑ ہار کہتے ہیں ہم جو پیدا کرنے والا ہے، جو پیدا اللہ کرنا، پاک. اللہ پاک. اچھا. اور ہماری راندیں اساں جو راندیوں، ہاں. ہمارے گیم. ہماری جی گیمز. ہماری اچھا. گیم، ہمارے کھیل. اچھا. جی. گل ایں تارا، گل ایں تارا، پھول اور پھول تارے. اور تارے. اچھا. جی. اور یہ بچوں کی کتابیں ہیں. یہ بچوں کی. اور اور اس جو طریقے سے سندھی میں میری جو کتابیں ہیں، میری پہلی کتاب 1978 میں چھپی تھی جب میں 78 میں. BA 1 میں پڑھتا تھا. اچھا. جی. اور اس کا یعنی نام BA میں آپ کی شاعری کی کتاب چھپ گئی تھی؟ BA 1 میں. اچھا. جی. ٹھیک ہے. تو 1978 میں صحیح. وہ پہلی کتاب تھی میری، اور اس کو انسٹیٹیوٹ آف سندھالاجی کی طرف سے بیسٹ بک آف دا ایئر کا ماشاء اللہ. ایوارڈ ملا تھا بڑی پہلی بات ہے کتاب جی. کو. اس کے بعد میری دوسری کتاب تھی وہ غزل، اس میں صرف غزلیں تھیں. غزلیں تھیں. اس کا نام تھا پیلا گل پلاند میں. اچھا. پیلا زرد گل. پھول، زرد پھول. جھولی میں زرد پھول. جھولی میں زرد پھول. نام ہی دیکھیں جی کتنا تو خوبصورت ہے، جھولی میں زرد اس کے بعد بچوں کی کتاب تھی گل ایں تارا. اچھا. اور اس کے بعد تھی ڈیئں ڈٹھے سپنا، دن دیکھے کے خواب. واہ واہ واہ. تو اس کو بھی سندھ گریجویٹ ایسوسیشن کی طرف سے گولڈ میڈل ملا تھا بیسٹ بک آف دی ایئر کا. جی جی. اس کے بعد میری کتاب آئی تھی توبن کیڑا چھامرا. اس میں مختلف جو اصناف سخن تھی وہ اس میں شامل تھی. اور اس کی جو اس کا پیش لفظ تھا جی جی. وہ اپنے دور کے بڑے شاعر شیخ ایاز صاحب نے لکھا. پھر میری وہ کلیات، آپ اس وقت تک کی کلیات سمجھ لیں، وہ دکھ جی نہ پجانیا. اچھا. کہ دکھ کی دکھ کوئی انت نہیں ہے، اس کا دکھ کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی انتہا نہیں. تو پھر وہ کتاب آئی تھی، اس کو سندھی لینگویج اتھارٹی کی طرف سے جی. اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کی طرف سے 97 میں ان کو دونوں اداروں کی طرف سے ایوارڈ ملا تھا. اور اس کے بعد جو اس کے بعد جو لاسٹ کتاب آئی ہے اس وقت، وہ ہے میلے کی تنہائی. میلے کی تنہائی. واہ. تو اس کو بھی لینگویج اتھارٹی سندھ اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے. ایوارڈ ملا ہے. اور ابھی
इस 14 अगस्त के दिन पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है मुझे लिटरेचर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी, ये इनका तारुफ जो था वो सबसे बड़ा इस वक्त तारुफ यही था कि इन्हें इनकी अदबी खिदमात पे जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी राइटर के लिए और किसी लिखारी ਲਈ कि भाई ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले जो उन्हें परफॉर्म किया अपनी लाइफ। तो सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऑनर है जो जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अल्लाह पाक का करम है। किसी भी डोमेन जी। में अपने जो है काम करने वाले शख्स को देते हैं, ये उनका एजाज़ होता है, उनकी इज़्ज़त होती है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक बहुत हो शुक्रिया इस जी, प्राइड बहुत ऑफ शुक्रिया परफॉर्मेंस जी। पे जो मैं- आपको मिला है। बिल्कुल। और हम मैं अल्लाह आपको पाक का शुक्र अदा करता हूँ अपने जो पढ़ने वाले हैं जिनकी वजह से ये इज़्ज़त हमें मिलती है जी कि वो हमें पढ़ते हैं, हमारी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, हमारी पजीराई करते हैं, पजीराई करते हैं, तो उसी वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मौका मिलता है। और लेकिन आपने ज़ाहिर है इतना अच्छा काम किया है और इतनी ज़्यादा आपकी शायरी पढ़ी जाती है, और अपने बच्चों के अदब पे काम किया है, बड़ों के जी। अदब पे काम किया है। और तो एक बात आपको मैं इसमें उस पे आपको प्राइड ऑफ जी परफॉर्मेंस जी मिला है, ये बड़ी इस हम पंजाबी में कहते हैं सलान जोग उत्ते मान जोग गल हैगी। नहीं तो सही कह रहे हो। एक बात का इजाफा कर दूं कि जो हमारे पाकिस्तान के जी जी अच्छे जो गाने वाले हैं, जी जी तकरीबन 300 मेरे नगमे जो हैं वो गाए गए। वो गाए गए हैं। वाह वाह, जी। क्या कहना। टीवी पे पीटीवी पे कैसेट्स में, अच्छा तो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हुआ है। आबदा परवीन, बिल्किस खानम, मसूद मलिक, इन समेत सिंध के जितने बड़े अच्छे गाने वाले हैं इतने सब ने बड़े गाए। शायर का कलाम तो फिर नहीं, इतने जी, बड़े जी। लोग गाएंगे ही ना, क्यों नहीं गाएंगे। और बनता भी था कि जी। वो गाएं। और अभी आपने और भी लिखना है, और भी इंशाल्लाह। नज़में जो हैं वो गाए ज़रूर। जाएंगे आपके लिखे हुए। तो आपसे हम कुछ सुनते भी हैं सर, कुछ शायरी हमें सुनाएं ताकि सर, जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने बात वाले वही हो हैं। जाती है कि क्योंकि मेरी शायरी का ज़्यादा तारुफ जो है वो जी। सिंधी है, जी। और सिंधी शायरी में ही मैंने काम नहीं, किया है। यहाँ पे पंजाब में भी बहुत से लोग सिंधी समझते जी। हैं, और सिंध में जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे ये हमारा दो चार लाइव- अशार मैं आपको जी। उर्दू गज़ल के सुना जी, देता हूँ, उर्दू में भी सुनाएं तो वो आप, ज़्यादा सिंधी- आसानी जी, रहेगी। जी जी प्लीज़। और किसी ज़माने में उर्दू में शायरी की थी, अच्छा। गज़लें भी लिखी थी, नज़में भी लिखी थी। तो मेरी कुछ गज़लें जो है वो पीटीवी इस्लामाबाद से रिकॉर्ड हुई थी। उनमें ही एक है जो मसूद मलिक ने गाई थी, वो हमारे एक अच्छे गाने वाले होते थे, ठीक है। वो तो गए। कितना गुमसुम रहता था, हाँ हाँ। छोटी बहर की गज़ल है। कितना गुमसुम रहता कितना था। गुमसुम रहता था, हाँ, बीच शहर में तन्हा था। वाह वाह वाह। कितना गुमसुम रहता था, बीच शहर में। शहर में तन्हा था। खुद को खोकर आया हूँ, वाह। खुद को खोकर खोकर आया हूँ, तुझको ढूंढने निकला था। वाह वाह। तुझको ढूंढने निकला था। निकला था, वाह वाह। और तुमने क्यों तकलीफ उठाई। वाह वाह। तुमने क्यों तकलीफ उठाई, मुझको डूबना आता था। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। तुमने बहुत क्यों तकलीफ उठाई, अच्छे। वाह वाह। मुझको डूबना आता आता था। था। और उसके हाथों टूट गया, हाँ हाँ, उसके हाथों टूट गया। टूट गया, जिसको टूट के चाहा था। हाँ हाँ, उसके हाथों टूट गया, जिसको टूट टूट के चाहा था। बहुत अच्छे। पैरों बैठ के रोए थे, हाँ। पैरों बैठ के रोए थे। वाह वाह, मैं था, मेरा कमरा था, बहुत अच्छे। संग्रेज़ों के बीच खड़ा है। वाह, लाया वो गुलदस्ता था। क्या कहने। संग्रेज़ों के बीच खड़ा है, लाया वो गुलदस्ता था। गुलदस्ता था। मेरी प्यास बुझाता कैसे, हाँ हाँ। मेरी प्यास बुझाता कैसे, हाँ, दरिया खुद ही प्यासा था। क्या बात है। वाह मेरी प्यास बुझाता कैसे, दरिया खुद ही प्यासा था। और कितना गुमसुम रहता था, वाह, बीच शहर में तन्हा था। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कहने। तो और भी कुछ सुनाएंगे। सिंधी जी, सिंधी, शेर है, गज़ल है एक सिंधी की। जी। यादगिरियूं संभाल कम ईंदई, यादगिरियूं वाह वाह। संभाल कम ईंदई, कंहिं विछोड़े जे साल कम हाँ, हाँ, ईंदई। वाह वाह यादगिरियूं संभाल कम ईंदई, वाह कंहिं विछोड़े जे साल कम ईंदई। वाह। हुन खां पुछजांइ, हाँ, गॾु हली सघंदीअ। वाह,
हुन खां पुछजांइ गॾु हली सघंदीअ हिकिड़ो वाह। नंढड़ो सवाल कमी ॾेई बहुत अच्छे। राह ऊंदहि अॻियां हयातीअ जी हाँ राह ऊंदहि अॻियां अॻियां हयातीअ जी प्यार ॾिए मिसाल कमी ॾेई वाह ऐं माण लम्हा मिलण जा वाह पर दिलि में बहुत अच्छे। माण लम्हा मिलण जा पर दिलि में के जुदायूं बि पाल कमी ॾेई वाह वाह यादगिरियूं संभाल कमी ॾेई बहुत अच्छे। के विछोड़े जे साल कमी ॾेई। वाह वाह अब इस क्या तरह से कहना तो पढ़ते जाएंगे तो हाँ, बहुत सी- बहुत सी आप खुद चीज़, शायर हाँ। हैं, आप समझते हैं कि शायर के पास जो हाँ खजाना जी, होता है जाहिर है वो शायर से बांटता तो चला जैसे जाता इतना मर्जी सुनते जाएं वो सुनाता जी। जाता है। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा लगा आप वो- हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, लाहौर में तशरीफ़ लाए मैं हैं, ब्लाक पंजाब का में तशरीफ़ लाए आपका हैं। हाँ जी शुक्रा सदफ साहबा का जी, बहुत जी। शुक्रगुजार हूँ आप सब दोस्तों का कि आपने एक मौका फराहम किया कि पंजाब के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले हैं, सबसे मुलाकात आमना हुई, सामना हुआ, आमना उनसे सामना, मुलाकात हाँ हुई जी, और अपनी बातें उन तक पहुंचाने का पहुंचाने एक को। मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा, सलामत रहें। और प्रोफेसर साहब हमारे साथ थे जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਲਾਕ ਲੋਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਜੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਭ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਮਾਣੋ, ਪਛਾਣੋ। ਲੈ ਬਈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ